Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV Morning Pulse. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi addressed the gathering at the 27th convocation of the New Delhi Institute of Management. He said it was a privilege to share the occasion with 500 graduating students, including the 315 who were present. He noted that it was commendable that many had returned for the ceremony despite already being employed. General Dwivedi said the graduates had embarked on professional journeys across various sectors and disciplines, and their presence reflected the pride, fulfillment and significance of the moment. Firstly, thank you very much for inviting me here today. It's truly a privilege to share this special day with some total of 500 graduating students of NDIM, and I am told physically approximately 315 are present here. That's a great achievement of making these many people coming in spite of leaving their job for a day and coming here. So, as I understand, you have already stepped into your professional journeys in diverse sectors of our economy, 13 study disciplines and 16 sectors of profession. The fact that you have travelled back to attend this convocation shows how much this movement means a day of pride, fulfillment and celebrations. The NDIM has over the years emerged as the benchmark of excellence and purpose, recognized by AICTE and CII, honoured by ASSOCHAM and FICCI. NDIM's distinction lies not merely in accolades but in its ability to blend learning with industry relevance and innovation. Its elevation as India's first mentor institute in management education stands as a proud testament to its leadership in nurturing professionals and entrepreneurs who will power the nation's growth in the years ahead. From the Fauji perspective, NDIM is the only B school partnered by Global Counter-Terrorism Council, and I am happy to note that defence veterans are part of the faculty grooming students to company-specific soft skills and corporate etiquettes for 400 hours. It's a pleasant surprise that defence veterans are teaching the soft skills, though they are the proponents of the hard skill. So when I first received the invite for this convocation, I must confess I paused for a moment to think, what could I possibly say to such young and bright business management minds of our country? Congress leader B.K. Hariprasad said the All India Congress Committee will hold a major protest rally at Ram Leela ground on 14 December 2025. He recalled that even before the Bihar elections, the party had initiated a campaign against the Election Commission of India, alleging incidents of vote theft, and had specifically launched a program targeting the Election Commission over these concerns. So, All India Congress Committee is organizing a big protest rally on 14 December 2025 at Ram Leela grounds. After Bihar elections, even prior to Bihar elections, we had launched a program against the Election Commission of India on this vote chori. That means stealing the votes. Earlier, Bharatiya Janata Party used to steal the MLAs to destabilize the government. Now, the Bharatiya Janata Party is using the Election Commission as its own frontal organization to defeat the opposition and the democracy. The way Election Commission is functioning, it is against the principles of democracy and is working against the Constitution. Election Commission is a constitutional body. It has to be impartial one. Unfortunately, he is behaving like a part of Bharatiya Janata Party's political tool. So strongly we are opposed to that, and we have, on the directions of the All India Congress Committee, we had launched a signature campaign against the Election Commission. Almost 5 crore signatures have been collected throughout the country, and all the signatures have reached Delhi. On 14th December, we are going to submit a memorandum to Rashtrapati because we don't have any faith in the Election Commission. He himself is a culprit. So we are submitting a memorandum against the Election Commission to save the Constitution and save the democratic principles. We are submitting the memorandum to the President of India, Rashtrapati. The prerogative of the Chief Minister and the AICC, they will do it. What about the change? It's all prerogative of the All India Congress Committee. It is the decision of the High Command. It's always, they keep meeting, nothing wrong in it. No, that's okay. That's a common thing. Political circles, we keep meeting, nothing wrong.
I am not a competent authority to answer those questions. Are you saying there is no change? I am not a competent authority to answer those things. It's only High Command will decide on that. Okay? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. Thank you. Nashik Department of Animal Husbandry and Dairying Deputy Commissioner Prashant Dharmadhikari said that after pigs were found near the shelter of animals in Nashik district, their samples were sent on November 19, 2025 to the High Security Animal Disease Lab in Bhopal for testing. The results confirmed the presence of African swine fever, also known as ASF. He added that in line with the National Action Plan June 2020, the district collector has declared the area an affected zone and all required measures are being implemented accordingly. Dr. Prakash Aher, Assistant Commissioner Animal Husbandry, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी पॉलिक्लिनिक नासिक यहाँ से बात कर रहा हूँ। जो नासिक महानगर पालिका क्षेत्र में पाथर्डी एरिया में जो शरण और एनिमल सेंटर एनजीओ है, उनके पास वरा थे। उस वरा में अनयूजुअल मॉर्टेलिटी चल रही थी, उसके वजह से उसका पीएम किया और सैंपल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई सिक्योरिटी और एनिमल लैबोरेटरी भोपाल को भेजा और 19 तारीख को वहां से वो सैंपल अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए पॉजिटिव आ गए। उसके बाद तुरंत कलेक्टर महोदय से नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया और अफेक्टेड एरिया से 1 किलोमीटर रेडियस में वो इन्फेक्टिव जोन डिक्लेयर किया और 10 किलोमीटर को सर्वेलेंस जोन डिक्लेयर किया। वहां कल रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना के वहां का सब सर्वे किया और वो ऐसा दिखाया गया कि वहां शरण इंस्टीट्यूट में के सब वरा नहीं थे और जो 1 किलो के रेडियस में भी कोई फर्क वरा दिखाई नहीं दी गई। लेकिन जो इन्फेक्टेड एरिया था उसका निर्जंतुकीकरण स्टेरिलाइजेशन किया और वो नो रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर करके वहां 90 डेज तक वरा न रखने के लिए सूचित कर दिया। बाद में जो सर्वेलेंस जोन के निगरानी के लिए महानगर पालिका को सूचित कर दिया और उन्होंने उनके वार्ड ऑफिसर के माध्यम से सब एरिया में निगरानी रख रही है। कहीं भी पिग में इलनेस और डेथ हो गई तो तुरंत पशुसंवर्धन विभाग को सूचित किया जाए, उससे वजह से जल्दी से सैंपल कलेक्ट किए जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए, ऐसे सूचित किया है। मनुष्य के लिए कुछ इस वायरस की हानि हो सकती है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज द स्पेशली डीएनए वायरस। ये वायरस खाली पिग से पिग को ही ट्रांसमिट हो जाता है, वो दूसरे एनिमल्स को या ह्यूमन को कोई हजार्ड नहीं करता। इसकी वजह से इंसान को उससे वजह से कोई तकलीफ नहीं होती, कोई घबराने की कोई बात नहीं। BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla said that whenever dynastic parties lose elections, they look for excuses. He noted that similar claims were made in Bihar, where it was alleged that 2 crore names would be removed from the voter list, yet not a single complaint was filed by the BLA before the Supreme Court. He added that before 2014, when SIR existed across the country, these parties had no objection. देखिए, ये जो भी पारिवारिक दल है, इनका यकीन परिवार तंत्र में है, संविधान तंत्र में नहीं है। और इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं या चुनाव हारने वाले हैं तो ये बहाना खोजते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस, आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। अब क्योंकि अखिलेश जी को लग रहा है कि वो भी चुनाव हारने वाले हैं, तो अभी से प्री पोल एक्सक्यूज बनाकर कभी एसआईआर को दोष देना, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देना। अरे अखिलेश महाराज, अखिलेश जी, आपको अगर लगता है कि गलत नाम कट रहे हैं, अभी तो ये प्रक्रिया एसआईआर की होगी। आपके बीएलए है, 1 लाख से अधिक बीएलए है, वो कहाँ है? उनको बोलिए ना जाके नाम जुड़वा दे जिनके नाम गलत कटेंगे, अगर कटेंगे तो। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप करवाइए ना, और अगर वहां पे सुनवाई ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए।
बिहार में भी ये कहते थे 2 करोड़ नाम कटेंगे, सब जो लोग हैं उनके नाम कट जाएंगे। एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी इनके बीएलए ने, और बिहार के एसआईआर पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं रखी। और यही समाजवादी पार्टी और इनकी जो जमात जो एसआईआर का विरोध बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश में करती है, महाराष्ट्र में बोलती है कि तुरंत एसआईआर करवा दो। 2014 से पहले एसआईआर होते थे तब वो खुश होते थे। तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी एसआईआर के पक्ष में है या एसआईआर के खिलाफ है? उनको कांग्रेस के पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। उदित राज कहते हैं कि अगर मंदिरों का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिदों का क्यों नहीं? इस तरीके की स्पेकुलेशन हमें देश में नहीं क्रिएट करने चाहिए। देखिए, टीएमसी का मतलब तो बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और इसीलिए उनके नेता हुमायूं कबीर ने जिस प्रकार से एक विवादास्पद बयान दिया है कि वो बाबरी को उभारेंगे 6 दिसंबर को, ये वही टीएमसी है जो हिंदू विरोध में कभी जय श्री राम का विरोध करती है, राम मंदिर का विरोध करती है, माँ काली माँ दुर्गा का अपमान करती है। और कांग्रेस पार्टी भी जो है वो उनके साथ इस तुष्टीकरण की जो कंपटीशन है उसमें पीछे नहीं रहना चाहती। इसीलिए हुमायूं कबीर का टीएमसी का बयान इस प्रकार का आता है तो कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की सबसे बड़ी चैंपियन, सबसे बड़ा भाईजान है, वो इसका समर्थन कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। ये वही पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर को लटका के अटका के भटका के रखा 70 वर्ष। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकार दिया। ये वही लोग हैं जब राम जी के अयोध्या में दीपावली के समय पर दियों को लगाया जाता है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो एक राम विरोधी पार्टी है, जो एक हिंदू विरोध स्वर में हमेशा बोलती है, सनातन समाप्त से लेकर हिंदू टेरर की बात करती है, आज वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में टीएमसी से आगे निकल जाए, इसलिए टीएमसी की भी इस बात का समर्थन कर रही है और ये कांग्रेस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। Cyber Cell SHO Sarita Singh said that retired medical college professor Prakash Mahajan was digitally arrested between September and October 2025 by fraudster posing as TRAI officials. The scammers falsely told him that he had taken a commission in a money laundering case involving Naresh Goyal and had therefore been named as an accused. इंदौर के निवासी हैं, वो हमारे पास में आए और उनके साथ में कम से कम 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट चलता रहा। लगभग वो कंटिन्यू वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहे। वो जैसा बोलते गए हमारे विक्टिम उनके साथ में वैसा करते रहे और लगभग 6 खातों में उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ 35 लाख रुपए जमा कराए। क्या बोल के कराया था? उनको ये बताया गया कि मैं ट्राई का अधिकारी बात कर रहा हूँ, जो मुंबई में नरेश गोयल नाम का जो व्यक्ति है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, उन्होंने ऐसा बताया है कि आपके आधार कार्ड पर एक खाता खोला गया है जिसमें आपके आधार कार्ड का यूज़ हुआ है। उस आधार कार्ड के आधार पे फिर आपको गिरफ्तार किया जाता है और आपने उनसे कमीशन का पैसा लिया है। इनके द्वारा बोला गया है कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और इन्हें आधार कार्ड का नंबर बता के और बताया गया कि ये आपका आधार कार्ड है। बोले जी सर ये मेरा है। ऐसा करके उनको बताया गया है कि देखिए बोले कि इसमें आपका नाम है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। चूँकि आप सीनियर हैं तो हम आपको वीडियो कॉल से हम कनेक्ट रहेंगे और आपको गिरफ्तार करने नहीं आएंगे। फिर उनको वीडियो कॉल पर ही उन्होंने कोर्ट रूम दिखाया, मजिस्ट्रेट दिखाया, मजिस्ट्रेट से बात करना दिखाया और उसके बाद में ना एक लेटर दे के उनको अकाउंट नंबर बता के उनसे पैसे जमा करवाए गए। कितने पैसे? लगभग 6 अकाउंट उन्होंने दिए थे और समय समय पर वो देते रहे और पैसा अमाउंट बताते रहे और उन्होंने कुल पैसा 4 करोड़ 35 लाख रुपए जमा करवाए। ये जो फरियादी है क्या नाम है इनका? देखिए कब की घटना है? फरियादी का नाम तो ठीक हो कब की घटना है? ये घटना सितंबर 21 से स्टार्ट हुई थी। 21 सितंबर 2025 से घटना स्टार्ट हुई थी और जब फरियादी हमारे पास में आए तो दिवाली के वीकेंड स्टार्ट हो गए थे। 18 अक्टूबर को वो हमारे पास में आए थे। चूँकि वो इतना लमसम अमाउंट जब जमा करने के लिए बैंक से पास में गए तो उन्होंने पहले ये बोला कि मुझे एक फ़्लैट ख़रीदना है। ऐसा बोल के उन्होंने बैंक वालों से बात करी तो बोले सर आपको सही बात बताइए हमको। तब उन्होंने फरियादी अपने FD तुड़ाने के लिए गया बैंक में। फिर बैंक वालों को जब उन्होंने बताया ना तो बैंक वालों ने उनसे कहा कि ये फ्रॉड है सर।
तब उन्होंने अपने एक रिश्तेदारों को बता के फिर हमारे से उन्होंने संपर्क किया। अब इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? जब फरियादी हमारे पास में आए तो हमने उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाया और जिन खातों में पैसा गया था हमने उनको फ्रीज करवाया। उसके बाद में हम उसमें आगे की विवेचना कर रहे थे, तो विवेचना में हमें ये पता चला कि उसमें से कुछ पैसा देवास निवासी एक सादिक पटेल के खाते में आया है और उसने वो पैसा निकाल के दिया है, यूज़ किया है उसने। हमने उसको पकड़ा और सादिक पटेल पिता एहसान पटेल जो पंथ मुंडला का निवासी है और वो ब्रांच मैनेजर है बैंक में। जब हमने उससे पूछताछ करी तो उसने आगे के बताया कि मुझे ये पैसा 4% कमीशन पे मेरे द्वारा दिया गया है। क्या कौन सी बैंक है ये जिसमें ब्रांच मैनेजर? SBFC नाम की गोल्ड लोन फाइनेंसिंग बैंक है जिसमें वो गोल्ड लोन देते हैं वो, और वो ब्रांच मैनेजर है। उनका जो पुराने कस्टमर से वो कांटेक्ट में थे और उसके बाद में ना उसने उनसे बोला कि मेरे को आपके खाते में पैसे डलवाने हैं और जिसका मैं आपको 4% दूंगा। 4% देने के बाद में वो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया उसको और फिर वो एक जिसको दिया है उनकी आगे विवेचना कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें? अभी तक 3 इसमें आरोपी गिरफ्तार हमने किए हैं, जिसमें सादिक पटेल पिता एहसान पटेल है और शाहिद खान है। शाहिद खान उज्जैन निवासी है और जिसने संपर्क किया था सोहेल खान से, सोहेल भंडारी को हम अरेस्ट कर चुके हैं। आगे जिनके नाम बताए हैं उनको। सोहेल और शाहिद का क्या रोल है? शाहिद और सोहेल का रोल ऐसा है कि जो पैसा सादिक पटेल के द्वारा दिया गया है वो शाहिद खान को दिया गया है। शाहिद खान ने अपना हिस्से का कमीशन रख के वो पैसा उन्होंने सोहेल को दिया है। और कितना पैसा एक सादिक के अकाउंट? देखिए, जब हमने इसमें टैली किया था स्टेटमेंट के आधार पर तो ये पैसा लगभग 3,78,000 रुपये था, जो पैसा इसके खाते में सादिक के खाते में आया था कॉन्ट्रैक्टर। और बाकी पैसा जो फ्रीज कराया वो कितना? वो जो फ्रीज कराया पैसा वो उसके अभी हम लोग ट्रेल पड़ रहे हैं उसको और वो हम जल्द जानकारी दे देंगे कितना। सारे खाते हमारे द्वारा फ्रीज करवा दिए गए हैं और आगे हम विवेचना कर रहे हैं। सारा अमाउंट रिकवर हो चुका है या फ्रीज हो चुका है? देखिए, सारा अमाउंट अभी हमारे द्वारा फ्रीज करवाया गया है। अमाउंट वो पर्टिकुलर बैंक खातों में बचा नहीं है, आरोपियों द्वारा उनको अलग अलग ट्रांजैक्शन कर दिए गए हैं जो हम आगे की ट्रेल मंगा के पढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहाँ इन्होंने कहीं फॉरवर्ड किया है और अन्य स्थानों पर? अन्य स्थानों के बारे में अभी हमारी पूछताछ जारी है। आरोपियों से लगातार हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और आगे हम स्टेटमेंट के आधार पर भी बैंक से जानकारी लेकर हम लोग उसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और पैसा कहां पर गया है और किसके माध्यम से किसको प्राप्त हुआ है। डिजिटल अरेस्ट जिन लोगों ने किया जी वो हाथ आए हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट उन्होंने जिन नंबरों का यूज़ किया है उसमें हमने जानकारी के लिए IP मंगवाई थी जो कि बाहर विदेशों की आई है, कंबोडिया की IP आई है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको भी ट्रेस कर पाएँ जिन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे विक्टिम से बात की थी। थे इंडियन ही जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले थे या विदेशी लग रहे थे जैसा कि फरियादी ने बताया? फरियादी ने जैसा बताया, फरियादी बात करता था तो नॉर्मल भाषा उनकी इंडियन भाषा ही थी, वो भारतीय भाषा में हिंदी भाषा में उनसे बात कर रहे थे और फरियादी की ही लैंग्वेज में उनसे बात की जा रही थी। और जिस तरीके से पुलिस और मजिस्ट्रेट और ये लोग बात करते हैं उसी तरीके से वो फरियादी से बात कर रहे थे। तो फरियादी उनके उसमें आ गया झांसे में कि वाकई में मुझसे सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही है, हाई कोर्ट से बात हो रही है। उसको ऐसा लगा उनके द्वारा इसलिए पैसा दिया गया। आपका परिचय? मैं इंस्पेक्टर सरिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर से। Special NIA court at Patiala House on Saturday allowed the plea of Radford Blast accused Jasir Bilal Wani for meeting with his lawyer on alternate days during remand at NIA headquarters. Wani is currently in the NIA custodial remand and Jasir Bilal Wani's alias Danish was arrested in Srinagar on November 17 by the NIA. मेरा नाम रजनीश है, मेरा बेटा सेकेंड ईयर में है। हमारा कंसर्न सिर्फ 2 फोल्ड था। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अथॉरिटीज अपना डिसीजन लेगी एज पर लॉ। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, एश्योरेंस कॉलेज से चाहते थे कि उसकी रिकॉग्निशन पे यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है और इसका असर डिग्री पे बच्चों के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो एश्योरेंस हमें मिला है कि वो स्टेप ले रहे हैं। NMC की भी विजिट हुई थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी स्टेप लिया जा रहा है और समय के साथ वो कुछ न कुछ प्रॉपर जवाब देंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है। आराम से कर लेंगे। सर, ये बताइए आपकी किससे मुलाकात हुई? जो रिप्रेजेंटेटिव थे कौन और क्या डेंगे? ये
कॉलेज के प्रोफेसर थे और वीसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई थी, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं थी। प्रिंसिपल भी अवेलेबल नहीं थे। हमारी रिप्रेजेंटेशन पे वो हमें मंडे ट्यूसडे तक जवाब दे देंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। सर, एफिलिएशन को कुछ बताया कि एफिलिएशन कैंसिल होने से क्या असर पड़ेगा या इस तरह की कोई जानकारी मिली हो अभी? उन्होंने बोला कि इसके रेस्पेक्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो एक्चुअल डिसीजन देंगे कि डी रिकॉग्नाइज होगी यूनिवर्सिटी या नहीं होगी, तो वी शुड वेट आउटकम क्या होता है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं सर यहाँ पे? जी, आप इनके आश्वासन से आप लोग सेटिस्फाइड हैं इनके आश्वासन? देखिए, ये ऐसा सिचुएशन है, एक दिन के अंदर रिजल्ट आएगा नहीं, समय तो लगेगा। हम भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए हैं और हम आगे चल के कुछ और होता। और अंदर क्या जो सवाल थे आप लोगों के, उसका प्रॉपर आप लोग को रेसिप्रोकेशन जवाब मिला है? सर, इसका एक दिन में इस चीज का जवाब नहीं आ सकता है। अथॉरिटीज ने इंस्पेक्शन की है, कंसर्न है, समय के साथ रिजॉल्व होगा। ठीक है ना सर? अपना नाम बता दीजिए। आप रजनीश, सेकेंड ईयर में। अभी पेरेंट्स आए थे, हम पेरेंट्स सभी यही है कि हम हमारे बच्चों की बात रखने आए थे। क्यों अभी जो सिचुएशन है, जो क्रूशल स्टेज इनकी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम थोड़ा कुछ डाउट्स थे, वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है, इन्होंने रिसीव कर ली है, तो इसका भी हमें थोड़ा देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। मैनेजमेंट से जी एक तो हमने ये श्योरिटी ली है कि कॉलेज बंद होने का क्या है। उन्होंने ऑरली कोई रिटर्न में नहीं हमें दिया, ऑरली उन्होंने बता दिया कि आपके बच्चे का भविष्य कहीं नहीं खराब होने वाला। वो कहते हैं कि इस चीज के लिए हम श्योर हैं कि कॉलेज अभी बंद नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। और जो अंदर बात हुई पूरी सद्भावना भरे माहौल में हुई है। कोई उसमें कोई जो हमने पूछा उन्होंने सही बताया। आपकी मुलाकात किससे हुई सर? किससे कौन था? मुलाकात हुई और उन्होंने एफिलिएशन कैंसिल को लेकर कोई जवाब दिया? नहीं जी, वो जो काम है एफिलिएशन वगैरह के, वो एनएमसी के हैं या हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, अभी हमने उनको लेटर दिया जी साइन करके। सर क्या लिखा लेटर में? लेटर में हमने लिखा जी कि अगर है जी, क्या लिखा सर मीटिंग में? नहीं, बीसी आज आए नहीं जी। बीसी आज उन्होंने बोला कि बीसी किसी जरूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने गए हैं, वो नहीं मिले। हमें वहाँ फैकल्टी के 3 थे बंदे, 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी। सर आपने लेटर ये बताइए सर, यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी को मिसयूज करने जा रहे थे, ये जो डॉक्टर्स मिसयूज कर रहे थे, क्या इसके बारे में अथॉरिटी को पता था? नहीं, हमारे को इस बात है कुछ नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए आए हैं जी। क्या टेरर मॉड्यूल है, क्या ना, कुछ नहीं, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए। लेटर में हमने सर यही लिखा है कि अगर कल को हरियाणा गवर्नमेंट, एनएमसी, एमसीआई या कोई भी एक्शन करती है तो हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनका फ्यूचर का हाल देख लो जी। सर एज अ पेरेंट्स आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा कंसर्न है ये आप लोग के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखो जी, ये जवाब तो यूनिवर्सिटी दे सकती है। बच्चों से आपकी बात हुई, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं जी अभी जो माहौल है ना, अभी जो माहौल अंदर का है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसा सर देखो ये एंटी कंट्री इतनी बड़ी बात हो गई, हम खुद घबरा जाते हैं, बच्चे तो छोटी सी बात है। अच्छा सर, हौसला दिया बच्चों को, क्या बताया? इतना बड़ा टेरर इसको लेके और पेरेंट्स की चिंता क्या है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? सरकार से भी ऐसा है कि एग्जामिनेशन सीजन भी है, अभी प्रॉब्लम भी होगी। सर ऐसा है, देखो जहाँ तक टेरर का सवाल है, वो या तो सिक्योरिटी एजेंसी बता सकती हैं या यूनिवर्सिटी वाले खुद बता सकते हैं। हम बच्चों के मतलब कोई सवाल है वो हम बता सकते हैं। सरकार से भी कोई अपील करना चाहेंगे? पेरेंट्स मिले हैं सर? बच्चों को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको प्रॉपर है जी। स्टूडेंट्स तकरीबन आ रहे हैं जी, तकरीबन सारे। आज हम तकरीबन 15-16 पेरेंट्स मिले हैं जी, एक टीम बना के। कोई चंडीगढ़ से आया जी, कोई राजस्थान से आया है, हरियाणा से, एनसीआर से आए हैं। सर इसमें कोई सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं? सर एमबीबीएस कर रहे हैं हमारे बच्चे, मान के चलो 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक हमारे बच्चे हैं।
सर बच्चों का नाम ऐसे नहीं, मेरा नाम खुशपाल सिंह है जी, ये हमारे रजनीश जी हैं जी। Barak Valley Development Minister Kaushik Rai personally inspected the progress of the work on the Sureshtar Expressway from Silchar to Haflong on Saturday. 23 km of work in the Barail Wildlife Area has been completed, and the work on the Jatinga Harangajau section will also be completed in March-April. The minister informed that before the 2026 elections, Barak will be connected to the expressway, the dream project of Atal Bihari Vajpayee. In the coming days, the government will also continue to carry out development works for the people. During the one-day inspection, Rajya Sabha MP Kanat Puriyayascha, Udharbon MLA Mihir Kanti Som and Dholai MLA Nihar Ranjan Das were present. Minister Kaushik Rai will also hold a review meeting with Haflong Circuit House. নিয়ে আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর যে রাস্তা যেটা কাজ দীর্ঘদিন থেকে চলছে এবং আমাদের বরাক উপত্যকা মানুষের একটা স্বপ্ন যে রাস্তা যদি সম্পূর্ণ হয় আমরা আসামের মধ্যে দিয়ে গুয়াহাটি হয়ে বহির্ভারত আমরা পুরো ভারতবর্ষে আমরা যেতে পারবো। এই রাস্তার কাজ আজকে আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমরা পরিদর্শন করতে এসেছি এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে হারাঙ্গাজাও থেকে বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পোর্শন যেটার কাজ সুচি কনস্ট্রাকশন করেছিল, যার তত্ত্বাবধানে NHADCL ছিল, সেই কাজ অলমোস্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। আর এখন আমরা এখানে এসেছি যে জায়গাতে এটা হলো আরেকটা যে প্যাকেজ চলছে, যে প্যাকেজ হলো হারাঙ্গাজাও থেকে নিরিম বাংলো পর্যন্ত 49 কিলোমিটার। আর এই 49 কিলোমিটার NHAI এই কাজ করছে এবং এই কাজের বরাত পেয়েছে DRA ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাকন, তারা এই কাজ পেয়েছে, তারা এই কাজ করছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে কাজ অত্যন্ত ভালো এবং স্পিডে কাজ হচ্ছে এবং আমাদের লক্ষ্য হলো যে জানুয়ারি মাসের মধ্যে যাতে আমরা এই রাস্তায় আমরা ট্রাফিক ছেড়ে দিতে পারি এবং সেই টার্গেট নিয়ে বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এবং বরাক উপত্যকা ডিপার্টমেন্টের তরফে আমরাও বারবার এটা নিয়ে রিভিউ করেছি। গত সেপ্টেম্বরেও বসে কিছু সমস্যা ছিল, সেটারও সমাধান হয়েছে এবং আমরা আশা করি যে জানুয়ারি মাসে আমরা এটা যেটা আছে সেটাকে কমপ্লিট করে অন্তত সব জায়গাতে 4 লেন না হতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গাতে 4 লেন আর বাকি অংশে 2 লেনও যাতে ট্রাফিক যাতায়াত করতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। দলইচুঙ্গা বলে একটা গ্রাম আছে, এরকম 5টা গ্রাম নিয়ে সমস্যা ছিল যখন আমরা সেপ্টেম্বর মাসে এসেছিলাম, কিন্তু দলইচুঙ্গায় কিছু পুরা গ্রাম নয়, আংশিক কিছু জায়গাতে একটু সমস্যা আছে। আজকে আমরা এখান থেকে গিয়ে সার্কিট হাউসে তাদেরকে নিয়ে বসবো, যারা সেই গ্রামের হেডম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ করবো, ডিপার্টমেন্ট থাকবে, কাউন্সিলর লোকরাও থাকবে এবং যত তাড়াতাড়ি এটাকে সমস্যাটাকে যাতে আমরা সমাধান করে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ। Kuchar police, acting on credible information, intercepted a white Bolero near the Balachera toll plaza. The vehicle was driven by Baharul Islam 27, a resident of Sonitpur, who was travelling from Silchar toward Dimahasa. A search on the vehicle led to the recovery of 6 plastic soap cases containing suspected heroin weighing 72.4 grams. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.